Hey all, good evening, and this is Shubhankar here from Consa, and welcome back to another webinar. Talking about the agenda for this particular session, we are going to understand about how using Consap's free tool, how we can find out an opportunity in the market, and how we can go ahead and capitalize on it further. So we at Concept we provide I would say industry's most widest range of free tools for option analytics. So looking forward to that, what we are going to learn today is something about only free tools, like how only using Concept's free tools, how we can kind of form and bias on market, then further shortlist our candidates, and then probably trying to analyze it more, and how we can kind of convert that opportunity into an high conviction idea. Basically how we can first do a top down approach towards the market and find out an instrument which is likely to have a momentum for a day at least. So that is going to be the agenda for the day. So in case of any doubts or queries while we conduct this particular webinar, so what you can do is just keep me posted in the YouTube's comment section below, and definitely I will be taking those queries. But make sure that the queries which you all put forward to me, those are kind of related to the topics which we are going to cover today, which obviously I'll try to disclose like what exactly is the agenda for the session. So let me note it down the agenda, what we want is and what we are going to go ahead and learn forward today. So let's say notepad. First we will have a bias on entire market. Okay, like looking at some data points, some derivative data points, how we can go ahead and find out and bias on market, because that is something which is very necessary. So now let's say for an example कि हमने मार्केट पूरा पूरा नीचे है एंड वो टाइम पे हमने एक पॉजिटिव ट्रेड आइडिया खोजने का ट्राई किया, देन अगेन दैट काइंड ऑफ ruins my entire move. और लेट्स पुट इट दैट वे कि लेट्स से कि मार्केट पूरा पूरा ऊपर है बट हमने एक शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया, दैट अगेन द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द मार्केट might be seen on our instrument as well. So we will have first bias on the market. Then what you need is basically कि okay अभी bias तो ढूंढ लिया but where exactly the opportunity is. Okay, so we will learn to find out opportunity in the market कि पूरा पूरा F&O segment है, कुछ 170 stocks है, right? So not necessarily we can track all of those, right, and we can participate in all of those. So what my idea is कि we will let the data to tell us कि where the opportunity has been created, and then we can try to analyze it even further. Okay, analyzing it further, and none but not the last thing is we will also try to kind of build some high conviction idea. Okay, building some conviction. Okay, so that is going to be the agenda for today. So all these we will try to use only concepts free tools, and then we can go ahead and try to do these things. Okay, so yeah, also we will try to understand some common terminologies like built-ups kya hota hai, what is short covering, how the open interest data is actually consumed from. So we will have a look on those parts as well very very quickly, and further how we can analyze it. Let's say if we are planning out our option trade, where exactly we can go ahead and see the payoff and all is something what we will try to understand. So synopsis is one of our our users one of the most favorite tools. So we will use synopsis, which is again a completely free tool. Then we will use open interest data, obviously. Then we will use the index contributor tool over here, and then we can use the charts as well, which again comes under a free panel. And let's say if you have find out an opportunity, आपको एक trade मिल गया, you need to analyze it, right? So you can do it in Architect. So yeah, these 5 6 tools would be on the radar list for the day. Also you can use the option chain apart from open interest, but we will use open interest, it is almost one and the same thing. Okay, so now let's try to move forward and directly form an bias on the market. Okay, so first is index contributor. So ये I would say it is for those traders who only want to trade Nifty and Bank Nifty. कि जिनको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ही ट्रेड करना है, ट्राई टू यूज इंडेक्स कंट्रीब्यूटर रेदर देन जो बिल्ट अप वाला थियरी हम समझेंगे. ओके,
कि यहाँ पे हमें क्या बताता है कि बेसिकली जो स्टॉक्स, पहले तो हमें निफ्टी का प्राइस मिल जाएगा, चेंज देखने मिल जाएगा कि आज के दिन में इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स निफ्टी कितना ऊपर या नीचे गया है, चेंज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो ऑब्वियसली परसेंटेज टर्म्स में आज के दिन में निफ्टी कितना ऊपर या नीचे गया है, ये चीज हमें वो बताएगा। ओके, देन इट विल टेल अस व्हिच स्टॉक्स आर कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली टुवर्ड्स इंडेक्स। तो इंडेक्स कंट्रीब्यूटर ये क्या है, ये हमें ये बताता है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक ने इतने पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए हैं टुवर्ड्स निफ्टी। तो जैसे एचडीएफसी बैंक है, आज के दिन में अराउंड अराउंड 28.9, मतलब ऑलमोस्ट 29 पॉइंट्स एचडीएफसी बैंक ने ऊपर लेके गया है निफ्टी को, फॉलोड बाय आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी एंड आईटीसी। ओके, हाँ ऑब्वियसली आई विल टेल यू कि विच स्टॉक्स यू शुड जनरली लुक आउट फॉर, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। देन द स्क्रिप्ट्स विच आर हाईलाइटेड इन रेड कलर, जो स्टॉक्स रेड कलर में हाईलाइटेड है ऑब्वियसली कि वो स्टॉक्स निफ्टी को नीचे लेके जा रहे हैं, दे आर ड्रैगिंग द इंडेक्स डाउन। सो टीसीएस है, इन्फोसिस है, रिलायंस है, ओके, एचसीएल टेक्नोलॉजीज है, पूरा पूरा आईटी सेक्टर इज ड्रैगिंग द इंडेक्स डाउन। देन हम सेक्टरल कंट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं कि कौन सा सेक्टर एग्जैक्टली कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स निफ्टी, वेरिन जो भी सेक्टर पे हम हमारा कर्सर लेके जाते हैं ऑटोमेटिकली दैट सेक्टर विल गेट हाईलाइटेड। तो प्राइवेट बैंक 61 पॉइंट्स पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है, फॉलोड बाय ऑटो स्पेस कंट्रीब्यूटिंग 26.8 पॉइंट्स पॉजिटिवली, एंड एनबीएफसी स्पेस पीएसयू बैंक भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ से आपको पता क्या लगेगा कि ओके, वेदर जो अपमूव आया है निफ्टी में, इज इट बैक्ड बाय सम सेक्टर्स और नॉट, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या पता लगेगा कि जो अपमूव आ रहा है निफ्टी में या डाउन मूव आ रहा है निफ्टी में, इज इट बैक्ड अप बाय द स्टॉक्स जो अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं निफ्टी को। ओके, नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, सो इसका मतलब मेरा ये है कि जब हम इंडेक्स कंट्रीब्यूटर देखते हैं ना, सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि ओके ये सिर्फ स्टॉक्स ही बता रहा है कि कैसे कंट्रीब्यूट कैसे कर रहा है निफ्टी के लिए। ओके, इट इज नॉट अबाउट दैट। अगर हम देखेंगे तो रिलायंस जो है, इसका वेटेज इंडेक्स में सबसे ज्यादा है। देन उसके बाद आता है एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, देन वी हैव इन्फोसिस, राइट। इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स का जो वेटेज है इंडेक्स में, दैट इज द हाईएस्ट। तो जनरली ओके, दैट इज जनरली द टेंडेंसी कि हमने कोविड के टाइम पे ये भी देखा है कि रिलायंस जो है एक दिन में अकेला निफ्टी को पूरा ऊपर लेके गया है, राइट, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग बीइंग रेड। सो जब हम इंडेक्स कंट्रीब्यूटर ओपन करते हैं, whenever we are planning out our option trade, always try to have an bias. Okay, obviously we are not directly jumping into a trade now, हम सिर्फ bias इकट्ठा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें देखना क्या है कि एचडीएफसी बैंक कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, विच इज वन ऑफ द इंडेक्स हैवीवेट्स, रिलायंस कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, विच इज द इंडेक्स हैवीवेट, इन्फोसिस, देन उसके बाद एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे स्टॉक्स का, देन कोटक बैंक एज वेल, ये सारे स्टॉक्स का हमें कंट्रीब्यूशन देखना है कि हाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स निफ्टी। सो इफ दे आर कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली, देन अगेन अ गुड मूव। इफ सारे सारे स्टॉक्स नीचे हैं, गिरे पड़े हैं, मतलब दे आर कंट्रीब्यूटिंग नेगेटिवली, सो जो इंडेक्स हैवीवेट्स है, जो कंपोनेंट्स है ना इंडेक्स में, वही निफ्टी को नीचे लेके आ रहे हैं, राइट। सो इन दैट केस आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ गुड आइडिया टू बी पॉजिटिव ऑन दैट डे। पहला। सेकंड चीज, सेक्टरल कंट्रीब्यूशन। तो इससे आपको दो चीज पता लगेगा, पहला कौन सा सेक्टर फोकस में है, सेकंड कि आपको ये पता लगेगा कि जो रैली आया है निफ्टी में, द अपमूव इन निफ्टी विच हैज बीन ऑब्जर्व, क्या वो सारे सेक्टर्स से बैक्ड अप हुआ है या नहीं। इफ इट इज बैक्ड अप, देन ओके, दैट इज गुड इंडिकेशन फॉर अस, राइट। लेकिन हाँ, अगर लेट्स से कि कोई एक अकेला सेक्टर लेके जा रहा है निफ्टी को ऊपर, दैट अगेन गिव्स यू काइंड ऑफ अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन इटसेल्फ। सो स्क्रिप्ट में अगर हम आएंगे तो द परफेक्ट एग्जांपल वुड बी लेट्स से ग्रासिम। ग्रासिम कितना ऊपर है, 3.3%, राइट। कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, सिर्फ 5 पॉइंट निफ्टी पर। लेकिन एचडीएफसी बैंक इन दैट केस इज जस्ट अप बाय 1.7%, एंड जो कंट्रीब्यूशन है एचडीएफसी बैंक का टुवर्ड्स निफ्टी, that is 28.9 points, almost 29 points. So that itself tells us कि जो ग्रासिम है इसका वेटेज जो है इंडेक्स में, that is low as compared to HDFC Bank. So what we need to do is, जब हम निफ्टी या बैंक निफ्टी पे जब बायस बना रहे होते हैं, so we need to check कि whether the index heavyweights are on the same side. Okay, मतलब अगर if they are on the same page itself, then okay, the move is pretty clear, right? नीचे है, that means
they have much more higher power to drag the index down as compared to the other stocks. And then we can check is what we can check is this one sector panel. तो इससे हमें two takeaways मिलेंगे. First, which sector is in perform focus, and also हमें ये पता लगेगा कि exactly जो rally आया है निफ्टी में is it backed up enough by all the sectors or not. तो इससे it will give us a lot of confidence while we are planning out our option trade. Again, we are not here to directly plan our trade. We will look out for that. मतलब हम देखेंगे आज जो दूसरे टूल्स हम एनालाइज करेंगे उसमें how we can go about it. But as of now, we just want a bias, whether positive or negative bias. Okay. Further हम ये भी कर सकते हैं. Let's say कि if you want to check एक historical data, let's say from 1st of I would say from 1st of October up till now, कौन सा स्टॉक कैसे contribute कर रहा है towards Nifty, so we can go ahead and check that. Okay. सेम इज द केस विद बैंक निफ्टी. सो अब बैंक निफ्टी का भी हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली विच स्टॉक्स आर कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली टुवर्ड बैंक निफ्टी और नेगेटिवली. द सेम डेटा हमें देखने मिल जाएगा फ्रॉम बैंक निफ्टी पर्सपेक्टिव. ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग. मतलब हमें सिंपल है, हमें ये देखना है कि whether the index heavyweights where they are standing. Okay, and accordingly we will at least have a bias. So ये हो गया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का. Okay, that generally you will use the index contributor and you can have a bias on the entire market. Now आते हैं जनरल मार्केट एज एन होल पे. ओके, अभी जरूरी नहीं है कि हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में ही ट्रेड लेना है. करेक्ट, पूरे एफएनओ में अराउंड 170 स्टॉक्स है. लेट्स से बैंक निफ्टी ने एक दिन अपॉर्चुनिटी दिया ही नहीं, देन व्हाट, राइट? So for that we will use the tool of synopsis to get an idea about what is happening in the entire FNO basket. पूरे बाजार में क्या हो रहा है, एक हमें क्विक लुक चाहिए पूरे बाजार पे. We can use the synopsis. Okay, so in synopsis there are 3 different panels which do pop up. Okay, futures OI, options OI and FNO volume. So if I click on futures OI, so अभी this tool ये हमें ये बताता है कि कौन से FNO इंस्ट्रूमेंट पे क्या बिल्डअप आया है. ओके, इन फ्यूचर्स. ठीक है, फ्यूचर्स में क्या बिल्डअप आया है वो हमें ये बताता है. सो बिफोर दैट लेट मी जस्ट राइट डाउन द बिल्डअप्स फॉर अस. ओके, सो लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है कि जहां पे द बुल्स आर इन कंट्रोल, प्राइस ऊपर जाता है along with the OI going up. Okay, so this is my price and this is my OI. सो लॉन्ग बिल्टअप में होता क्या है कि द बायर्स आर डोमिनेंट, दे आर काइंड ऑफ पंपिंग द प्राइस हायर. ठीक है, तो बायर एंड सेलर बोथ है, नो डाउट. ऐसा नहीं है कि फ्यूचर सिर्फ बाय वाला ट्रेड से ही बन रहा है. ओके, द ओपन कॉन्ट्रैक्ट वोंट गेट क्रिएटेड, बट व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लॉन्ग इज बेसिकली यहाँ पे बायर इज रेडी एक बढ़ते हुए प्राइस में भी. तो अगर हम सोचेंगे कोई इंस्ट्रूमेंट का प्राइस ऐसे मूव हो रहा है, तो इवन इन द राइजिंग प्राइसेस द बायर इज स्टिल रेडी टू पार्टिसिपेट. ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज अ लॉन्ग. लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या है? लॉन्ग अनवाइंडिंग जो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट हुए थे वो अनवाइंड हो रहा है. सो व्हेन दिस केस व्हाट हैपेंस, प्राइस गोज डाउन, ओपन इंटरेस्ट गोज डाउन. तो एक इंस्ट्रूमेंट में ये जो डिप आता है इट कैन बी ड्यू टू अ लॉन्ग अनवाइंडिंग. ओके, लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्या होता है, जो लॉन्ग पोजीशंस थे दोज आर गेटिंग अनवाइंडेड. ठीक है, एक काइंड ऑफ यू कैन कॉल इट एज अ प्रॉफिट बुकिंग, कि प्रॉफिट बुकिंग के चलते प्राइस नीचे जा रहा है. जिन्होंने लॉन्ग किया था वो उनका पोजीशंस अनवाइंड कर रहे हैं, वो उनका पोजीशंस बेच रहे हैं, उसके चलते प्राइस नीचे जा रहा है. ओके, देन आता है शॉर्ट. शॉर्ट में क्या होता है, प्राइस नीचे जाता है. सो दिस इज मच मोर ऑफ अ बेयर डोमिनेंट. तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइस नीचे जाता है बट ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाता है. ओके, द प्राइस गोज डाउन बट द ओआई गोज अप. सो दिस इज काइंड ऑफ एन बेयर एग्रेशन. तो यहाँ पे क्या होता है, इवन इन द फॉलिंग प्राइसेस. ठीक है, तो लेट्स से कि इंस्ट्रूमेंट का प्राइस ऐसे जा रहा है. ओके, सो इवन इन द फॉलिंग प्राइसेस यहाँ पे भी किसी ने बेचा है. ओके, सो द सेलर इज डोमिनेंट and the buyer is spectacle and kind of यहाँ पे एक शॉर्ट का पोजीशन क्रिएट हुआ है. सो यहाँ पे क्या होता है, प्राइस नीचे, ओपन इंटरेस्ट ऊपर. लास्ट थिंग इज शॉर्ट कवरिंग. सो शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है, जो शॉर्ट बिल्टअप हुआ था वो पोजीशन कवर हो रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा बट ओआई नीचे जाएगा. सो दिस इज द कॉमन थिंग ऑफ द बिल्टअप in terms of futures. Okay, future option, the generally the formula will remain the same. Long, price ऊपर, open interest ऊपर, be it 0.01% as well, still it will be considered as a long. उसका कुछ क्वांटम नहीं है, प्राइस मार्जिनली ऊपर, ओआई मार्जिनली ऊपर, इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग. लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या है, जो लॉन्ग पोजीशंस थे उनका अनवाइंडिंग हुआ, इट इज कॉल्ड एज अ लॉन्ग अनवाइंडिंग. शॉर्ट बिल्टअप क्या है, प्राइसेस आर पम्प डाउन बाय द बेयर्स. ओके, एंड शॉर्ट कवरिंग क्या है, बेसिकली यहाँ पे जो शॉर्ट बिल्टअप हुआ था दोज आर गेटिंग कवर्ड.
सो नाउ जैसे ही हम सिनॉप्सिस में आते हैं, एंड आई ऑल्सो डोंट वरी कि कब करना है, आई विल टेल यू दैट ऑल्सो, दैट इज स्टिल फाइन, ओके, बट वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड द आइडिया. सो सिनॉप्सिस फ्यूचर OIH जो पहला पैनल है सिनॉप्सिस में, इफ आई गो टू दैट, सो इफ आई जस्ट गो ऑन सिनॉप्सिस, आई विल टेल यू. सिनॉप्सिस पे क्लिक करेंगे हम तो 3 डिफरेंट पैनल्स पॉपअप हो जाता है. लेट्स से फ्यूचर OI, ओके, फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट. सो नाउ दिस टूल व्हाट इट शोज इज कि कौन से फ्यूचर्स में क्या बिल्टअप आ रहा है. ओके, so basically it shows us ki on what futures contract what is the built up that has been witnessed. The green color boxes, the stocks which are highlighted in green color, it tells us that long built up has been made. तो टाटा मोटर्स में हुआ क्या है, प्राइस ऊपर गया है, ओपन इंटरेस्ट ऊपर गया है, ओके, और लॉन्ग बिल्ट अप. IEX में क्या हुआ है, प्राइस इज अप बाय 11%, OI इज आल्सो अप बाय 11% ऑफ फ्यूचर्स. ठीक है, तो फ्यूचर का OI भी ऊपर गया है, प्राइस भी ऊपर गया है, लॉन्ग बिल्ट अप. सो जो स्टॉक्स ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है वो हमें लॉन्ग बिल्टअप बताता है. सो अगर हम लॉन्ग पे क्लिक करेंगे, सो जो स्टॉक्स जिनमें लॉन्ग बिल्टअप आया है वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे हमारे लिए. LU पे क्लिक करेंगे, लॉन्ग अनवाइंडिंग. तो अगर हम देखेंगे LU में क्या हो रहा है, प्राइजेस आर गोइंग डाउन. ठीक है, कितना क्वांटम है, एज आई सेड ना कि उसका कोई सिग्निफिकेंट क्वांटम नहीं है. इवन मार्जिनली प्राइस गोज डाउन एंड OI गोज डाउन, इट विल बी अ लॉन्ग अनवाइंडिंग. तो जो स्टॉक्स ब्लूइश काइंड ऑफ कलर, आई डोंट नो विच कलर इज इट एग्जैक्टली, सो ब्लूइश काइंड ऑफ एन कलर, वो स्टॉक्स एक लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव में, कि वो पोजीशंस जो लॉन्ग बिल्टअप हुआ था वहां पे वो अनवाइंड हुआ है. एस पे क्लिक करेंगे, वी विल गेट टू सी द स्टॉक्स व्हिच हैव विटनेस्ड अ शॉर्ट बिल्टअप. सो जो स्टॉक्स जिनमें शॉर्ट बिल्टअप आया, इट शोज अस दैट. तो ये स्टॉक्स में अगर हम फोकस करेंगे, देयर इज समथिंग कॉमन. द प्राइजेस आर गोइंग डाउन एंड OI इज गोइंग अप. जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना, that the in short built up what will happen, the prices will go up, go down and OI will go up. तो इन सारे स्टॉक्स में देयर वाज अ शॉर्ट बिल्ट अप. ऑब्वियसली ये हमें ये नहीं बताता है कि हमें क्या सेल करना चाहिए, क्या बाय करना चाहिए. आई विल टेल यू कि व्हाट एग्जैक्टली द टेक अवेज, बट ऑल दीज आर द स्टॉक जहां पे एक नेगेटिव मूव चालू है. शॉर्ट कवरिंग्स अगेन, यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग, जो शॉर्ट्स थे वो कवर हो रहा है. सो द प्राइसेस आर गोइंग अप एंड द OI इज गोइंग डाउन. ठीक है, तो ये रहा हमारा शॉर्ट कवरिंग सिनेरियो. तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ रहा है. ओके, so you'll get to see the top gainer. IEX is top gainer, followed by Tata Motors, GMR Infra and Tata Power and Torrent Power, APL Limited, Zeal. ये सारे हम जो भी स्टॉक पहले पे है, the stock which appears to be on the first, that tells us it is the top gainer. The stock which is at the bottom, वो बताता है कि that is the top loser. Okay, so top loser देखेंगे 5%, टॉप गेनर देखा हमने 11%. ओके, दैट इटसेल्फ टेल्स यू कि जो टॉप गेनर है वो ज्यादा बड़ा है बाजार में as compared to top loser. That itself tells you that okay, there is something positive going around. Okay, again that figure does not tell you anything. Now the important fact is, हाँ, अगर बैन लिस्ट वाला स्टॉक देखना है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे. ओके, सो द स्टॉक्स जहाँ पे ऐसा सिंबल आया होगा, जैसे आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में, नेशनल एल्यूमिनियम में, दोज आर द स्टॉक्स इन बैन. ओके, summary, this will give you a clearer idea कि what exactly is happening. So green, as I said, long, blue long unwinding, red short, yellow short covering. So now this tool tells us, what it is showing us कि n number of stock out of total FNO stocks, 83 FNO stocks have witnessed a long build up. FNO में जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें से 83 स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्टअप आया है. ओके, then short, red color, the moment I place my cursor over there, the tool itself tells us कि पूरे FNO सेगमेंट में से जितने भी FNO स्टॉक्स है उनमें एक शॉर्ट बिल्टअप आया है. लॉन्ग अनवाइंडिंग, सो नाउ 14, मतलब पूरे बाजार में जितने भी स्टॉक्स है वहां पे एक लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव आया है. ओके, दैट द प्रॉफिट बुकिंग इज हैपनिंग. शॉर्ट कवरिंग इज बेसिकली अगेन पूरे FNO सेगमेंट में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें से 37 इंस्ट्रूमेंट्स पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ रहा है. सो नाउ यू ऑल टेल मी कि आप लोग मुझे बताइए कि लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट, ऑलमोस्ट इट इज 1:2, ओके, और 2:1. सो नाउ एटलीस्ट फॉर द डे, अगर हम एक ट्रेड लेने का कोशिश करते हैं, ओके, इफ आई वांट टू टेक अ ट्रेड,
तो अगर मैं ये चीज देखता हूँ कौन सा स्टॉक, वी विल डिसाइड दैट ऑल्सो. बट इफ आई एम लुकिंग एट द स्क्रीन, it gives me first indication that the market's breadth is on the positive side. At least मतलब जब कभी भी हम देख रहे हैं, at least at that point it will tell us that okay, it is the market's breadth is on the positive side. Okay, अगर मुझे लॉन्ग साइड पे ट्रेड खोजना है तो आई हैव 83 अपॉर्चुनिटीज. If I want to find it out on the short side, I just have 47 opportunities. And also market has been performing quite good recently. Correct? So why we should go ahead and do something on short side? Instead, we can go ahead and find out something on the long side. Correct? So that is the whole thing. कि जहाँ पे just to sum it up कि जो पहला panel है in synopsis. So Synopsys Future OIH, which is again a free tool. So now what this thing does is basically it gives us an heads up like what is happening in the entire FNO segment. Top gainers will get to see the top losers, and also you'll get to see the market summary, which will tell you about the market breadth. Okay, that itself will tell you that what is your bias on the market. Okay, so here is one example of it. You all can answer. Okay. Let's say longs are 20 and shorts are the instruments on the short size are let's say 130. So which side we should go ahead and plan a trade? जो लॉन्ग साइड पे स्टॉक्स है वो 20 है, एंड जो शॉर्ट साइड पे स्टॉक्स है दैट इज 130. सो विच साइड, मतलब आइडियली वी विल ट्राई टू लुक आउट फॉर सम डेटा पॉइंट्स, राइट? बट एटलीस्ट कौन से साइड पे ट्रेड लेना है, कौन सा बाजू पे ट्रेड लेना है, एटलीस्ट दैट विल गिव अस, दैट विल इटसेल्फ टेल अस कि व्हाट एग्जैक्टली द थिंग इज वी शुड डू. Okay, so short, correct? So everybody has posted a short, right? Correct, because the market's breadth is itself on the negative side. So I hope the first panel is clear. Basically, it is about top gainers, top losers. Then हमने जैसे वो पकड़ा था, right? Index contributor में अगर हमने ये देखा होता, so this one in sector, ये हमें sector भी बताएगा कि which sector is outperforming. Okay, so probably we can find out some stocks from that itself. So now coming to the second thing, which is synopsis में options हुआ है. Okay. So by the way, is there any doubt up till now? Are we clear up till now? Any minute doubt you can post it out because we are moving towards a bit of complex thing now. Okay. Because there is something which should be understood over here before we try to jump onto the door. यहाँ तक कुछ भी doubt है? नहीं, वो कल का आपको बताएगा ही नहीं. ओके, इट्स नॉट टेलिंग यू अगेन टू कल बाय करना है या कल सेल करना है. इट इज नथिंग अबाउट दैट. वी विल अंडरस्टैंड, हम समझेंगे उसका जो बिल्टअप जो है. एटलीस्ट हमें पहला एजेंडा ये था कि हमें एटलीस्ट बायस हो, कि कुछ तो हमारे माइंड में डायरेक्शन हो बाजार में. ओके ओके, सो वी आर क्लियर अप टिल नाउ, सो दैट्स ग्रेट. ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड. ओके, so synopsis options हुआ है. Okay, now coming to the second panel in synopsis, which is synopsis options हुआ है. Now once we have an bias जो हमें synopsis future UI से मिला. Okay, so the bias which we got from synopsis future UI, we will use that bias and also index contributor say the thing which we got, which was auto sector and banking sector, the private banks outperforming for the day. What we will do is we will try to dive deep into the options data. Options के data में और थोड़ा deep जाके we will try to identify some opportunities. Okay. Now, synopsis options why what it tells us is long call, long put, short put, long unwinding call, long unwinding put, short covering call, short covering put. Okay. Now, before that, I just want to show कि how exactly open interest data को exactly how we try to interpret. So talking about options हुआ है, तो futures में तो हमने देख लिया this formula will still remain the same. Okay, तो ये तो हमने देख लिया. Now coming to the options हुआ है. Okay, so options हुआ है में आप
एक कॉमन चीज हम सभी ने एनालाइज किया होगा कि वी हैव हर्ड अ कॉमन थिंग विच इज कॉल राइटिंग है निफ्टी के 18,000 के कॉल पे, कॉल राइटिंग है निफ्टी के आई वुड से 18,200 के कॉल पे. वी नेवर हियर इट कि कॉल बाइंग हो रहा है निफ्टी के 18,000 के कॉल पे, राइट? व्हाई इज दैट सो? सो नाउ द ओपन इंटरेस्ट जो है, ओके, इट इन्वॉल्व्स बोथ पार्टीज. जो ऑप्शंस का हुआ है या फ्यूचर्स का हुआ है, ओके, डजंट मैटर फ्यूचर्स और ऑप्शंस. ओपन इंटरेस्ट दैट इटसेल्फ टेल्स यू कि इट इज एन ओपन कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे बायर भी है, सेलर भी है, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट ही नहीं होता, राइट? लेकिन जो ऑप्शंस डेटा है, द ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट इज कंज्यूम, परसीव्ड और लुक फ्रॉम, मतलब जो व्यू पॉइंट है वो सेलर का दिया जाता है यहाँ पे. ओके, सो आई एम इन ऑप्शन चेन टू. तो यहाँ पे आपको इन बिटवीन आर द स्ट्राइक प्राइसेस, लेफ्ट हैंड साइड कॉल, राइट हैंड साइड पुट. तो अगर हम देखेंगे 18,000 पे, सो दिस इज माय ओपन इंटरेस्ट. तो जो ग्रीन बार है यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रीन बार है, मतलब ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया. ओके, एंड जहां पे भी सबसे बड़ा बार है वो हमारा सपोर्ट हो गया. नाउ कमिंग बैक कि ओपन इंटरेस्ट को पार्टिसिपेंट्स और टेक्निकल एनालिस्ट अज्यूम कैसे करते हैं, हाउ दे लुक एट इट. दे लुक एट इट फ्रॉम एन सेलर्स पर्सपेक्टिव. तो क्यों, लेट्स से हमें बाय करना है ऑप्शन, हमें लग रहा है निफ्टी ऊपर जाएगा, रैंडमली गए हम 76 पे जो प्रीमियम है वो खरीद लिए. ओके, तो हमने ये कॉल ऑप्शन खरीद लिया 76 रुपीज का. ओके, सो नाउ सेकेंड थिंग इज कि अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम एक ऑप्शन सेलर है, तो हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन बेच देंगे 76 का. सो इन बोथ ऑफ द केसेस डू नोट ऑफ द प्रीमियम इज सेम, लेकिन जो बायर है वो छोटा कैपिटल पे करेगा, सेलर है ही विल पे एन हैवी मार्जिन. ओके, फर्स्ट थिंग. सेकंड इज बायर का रिस्क कुछ है नहीं, 76 रुपीज का ही रिस्क है, नथिंग मोर देन दैट ही हैज टू लूज, बट सेलर हैज एन अनडिफाइंड रिस्क. ओके, फोर्थ थिंग इज, आई वुड से थर्ड थिंग इज, बायर का प्रॉफिट अनलिमिटेड है. यहाँ से पूरा निफ्टी लेट्स से पूरा लेट्स से 18,200 चले गया, दिस प्रीमियम विल गेट डबल्ड. ओके, बट सेलर के केस में इवन इफ निफ्टी गोज अप टिल एट दिस लेवल, लेट्स से निफ्टी यहाँ तक भी चले गया, स्टिल सेलर को 76 रुपीज से ज्यादा कुछ प्रीमियम मिलेगा नहीं टू मेक मनी. ओके, so seller का profit is limited. So now that tells us that option seller is having an heavy stake in the market. मतलब आप रैंडमली जाके कोई भी ऑप्शन सेल नहीं कर पाएंगे. सो टेक्निकल एनालिस्ट अज्यूम करते हैं कि बेसिकली सेलर ने एक सोचा समझा बिड लिया है, सोचा समझा ट्रेड लिया है, एंड ही लुक्स एट इट फ्रॉम एन सेलर्स पर्सपेक्टिव. नाउ सो लेट्स से ऑप्शंस हो गए. ओके, okay, so I hope the open interest logic is clear, although we have covered it a lot of times, so I have not gone very deep into it. Okay, so I am in synopsis options हुआ है. Okay, so अभी मुझे करना क्या है, I want to find out something on the positive side, right? So if I draw a paint, okay, so let's say I want to find out something which is on the positive side. Okay, so let's say this one, so this is one, okay, this is one, okay, and this is one. Okay, let's say this is one. ठीक है, ये रहा, this is my open interests कि ये हमारे open interest है. Okay, so now let's say the prices of an instrument is going up like this. Okay, and assume that this is my call strike. Okay, COI strike, max call नहीं है ये, I don't know which strike it is but my all these are my call strike prices. Okay, so now the call sellers, okay, will act like my resistance कि हम ये assume करेंगे these are my call sellers. Okay, कि यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने कॉल उनका बेच रखा है. ओके, वॉट एवर द स्ट्राइक इज, लेट्स से कि ये 100 रुपए का स्ट्राइक है. ओके, एंड द इंस्ट्रूमेंट प्राइस इज 99. ओके, तो ये हमारा हो गया एट द मनी स्ट्राइक पहला. ओके, सो दिस इज माय एट द मनी. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, द प्राइसेस आर काइंड ऑफ एट दिस लेवल नियर माय एट द मनी, एंड हम सडनली देखते हैं कि वहां पे एक अनवाइंडिंग हुआ. ओके, the OI got unwinded. Okay, so the OI was down. Okay, and हम ये देखते हैं कि एक प्राइस जो है, okay, जो कॉल का प्राइस है, okay, the price kind of went up higher. Okay, so what has happened, the price is going up and the OI is going down. So basically जो short built up आया है, okay, जो कॉल सेल करके लगा हुआ है,
सो लेट्स से कि हमने ये कॉल सेल किया है, ओके, सो नाउ वी नीड टू बाय इट, ओके, सो यहाँ पे आके बाय हुआ वो कॉल, उसके वजह से क्या हुआ, द प्राइसेस आर काइंड ऑफ मूविंग अप हायर, करेक्ट। सो शॉर्ट कवरिंग हैपनिंग ऑन कॉल साइड, इट टेल्स अस कि बेसिकली जो कॉल बेचा हुआ था, ओके, सो लेट्स से कि जिन्होंने यहाँ पे कॉल बेचा हुआ है, सो दोज आर गेटिंग वरीड एंड दे आर काइंड ऑफ बाइंग इट, तो उसके चलते क्या हो रहा है, द प्राइसेस आर काइंड ऑफ मूविंग अप। तो अभी ओवाई कम कब होगा, जब बेचा हुआ कॉल अनवाइंड होगा, जब ओपन इंटरेस्ट घटेगा, सो द ओपन इंटरेस्ट विल काइंड ऑफ गो डाउन फ्रॉम हियर। एंड शॉर्ट कवरिंग का फॉर्मूला क्या हमने समझा था, सो द शॉर्ट कवरिंग फॉर्मूला वाज प्राइसेस गोइंग अप, ओपन इंटरेस्ट गोइंग डाउन, राइट। सो नाउ अभी हम कर क्या रहे हैं, हम ऐसा स्ट्राइक प्राइस खोज रहे हैं जिसमें पूरे एफएनओ सेगमेंट में सबसे ज्यादा शॉर्ट कवरिंग आया हो कॉल साइड पे, ओके। सो नाउ वंस वी डाइव डीप इनटू सिनॉप्सिस ऑप्शंस हुआ है, हाँ मैं ये भी बताऊंगा कि लॉन्ग कॉल व्हाई आई जनरली डोंट प्रेफर, ऑल्दो यू कैन डू इट बट स्टिल व्हाई आई डोंट प्रेफर। सो शॉर्ट कवरिंग बिकम्स लाइक एन प्रिटी क्लियर एंड प्रिटी फास्ट मूव। सो अगर हम बात करेंगे आईएक्स 720 के कॉल पे, OI has gone down by 83%. Price of that option is right now 80 rupees. In terms of percentage, वो जो प्रीमियम है वो 100% से ऊपर क्या है, प्रीमियम डबल हुआ है। IEX अगेन 730 कॉल, प्राइस 74 रुपीज है, 103% प्रीमियम ऊपर है, OI 70% डाउन। टाटा मोटर्स 385 कॉल, OI is down by 70% almost, प्राइस ऑप्शन का प्राइस डबल हुआ है। टाटा मोटर्स अगेन 390 कॉल, अगेन द प्रीमियम हैज डबल। देन अगेन हम टाटा पावर देखेंगे, 68% OI अनवाइंडिंग, प्राइस ऑफ दैट ऑप्शन हैज गॉन अप बाय 100%। देन मारुति, ओके, सो मारुति का आई विल टेक एन एग्जांपल, ठीक है, मारुति व्हाई आई विल टेल यू दैट आल्सो। सो ना मारुति में एटलीस्ट मतलब अगर हम ये स्क्रीन देखते हैं ना, तो हमें इतना पता लग जाएगा कि ओके a short covering is happening on call, okay, so I'll just note it down कि let's say short on put, okay, short put happens when the movement is bullish, okay, short covering on call happens when again the movement is bullish, okay, and negative side पे क्या होता है, shorts happen on call, okay, when we expect the price to go down, है ना, हम हमारा बेचा हुआ कॉल कब, आई वुड से हम एक शॉर्ट कवरिंग पुट पे कब लाएंगे, तो हम पुट पे शॉर्ट कवरिंग तब आता है जब द सपोर्ट इज गेटिंग ब्रोकन, ओके, कि यहाँ पे जो पुट राइटर्स है दे आर काइंड ऑफ वरीड, ओके। सो अगेन व्हेन वी सेल अ कॉल, ओके, सेल कॉल इज व्हेन वी एक्सपेक्ट समथिंग टू गो डाउन, ओके, तो ये बेचा हुआ कॉल कब हम कवर करेंगे, सो इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट कवरिंग ऑन कॉल, ओके, SCC शॉर्ट कवरिंग ऑन कॉल, जब हमें लगता है मार्केट विल गो अप, ओके। सेम इज द थिंग, हम पुट कब बेचते हैं, लेट्स से सेल अ पुट, यहाँ पे जब हमें लगता है प्राइस ऊपर जाएगा, फिर हम वो पुट को कवर कब करते हैं, जब हमें लगता है कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा, ओके, ये बेचा हुआ पुट है हमारा, उसको हमने कवर कब किया, जब वी आर एक्सपेक्टिंग द डाउनवर्ड मूव इन द प्राइस, ओके। सो अभी यहाँ पे हम देखेंगे तो शॉर्ट कवरिंग ऑन कॉल इतने सारे स्ट्राइक्स पे, ओके, देन अगेन हम देखेंगे शॉर्ट हैपनिंग ऑन पुट, टाटा मोटर्स 430 का पुट पे शॉर्ट, टाइटन 2500 के पुट पे शॉर्ट, देन इंडिगो 2020 के पुट पे एक शॉर्ट, टाटा मोटर 410 के स्ट्राइक प्राइस पे एक पुट का प्राइस नीचे गया है, ओके, एंड ओवाई बढ़ा है, मतलब देयर इज अ काइंड ऑफ शॉर्ट व्हिच हैज बीन गेटिंग क्रिएटेड। बैंक बड़ौदा अगेन द सेम थिंग, करोमंडल। सो नाउ एटलीस्ट पूरा एफएनओ सेगमेंट में से व्हाट यू नीड टू डू इज यू शुड, मतलब जब मार्केट का मोमेंटम इज पॉजिटिव, यू कैन फाइंड आउट कि कौन से स्ट्राइक प्राइसेस के कॉल राइटर्स आर वरीड, कौन से स्ट्राइक प्राइसेस के कॉल राइटर्स डरे हुए हैं, एंड कहाँ पे एक पुट एडिशन हो रहा है, सपोर्ट कहाँ बढ़ रहा है एंड रेजिस्टेंस कहाँ वीक हो रहा है, ओके। सो इफ आई शो यू द ओपन इंटरेस्ट, ओके, तो अगर हम ओपन इंटरेस्ट में जाएंगे, ओके, सो ओपन इंटरेस्ट आपको ये बताएगा जो रेड कलर के बार्स है वो हमारा सपोर्ट का जैसा एक्ट कर रहा है, राइट, एंड जो ग्रीन कलर के बार्स है वो हमारा रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट कर रहा है। रेड कलर बार्स आर शोइंग अस पुट ओवाई, ग्रीन कलर बार्स आर शोइंग अस कॉल ओवाई। तो यहाँ पे अगर हम हॉलो देख रहे हैं विच मीन्स द कॉल राइटर्स हैव अनवाइंडेड, यहाँ पे जो हम रेड देख रहे हैं ऐड हुआ द डेंसर टिप, इट शोज अस दैट एडिशंस हैव बीन मेड।
So the support is getting stronger and resistance is getting weaker. Okay, so the instrument has a likely chance of making a spike from here. Okay, so now at least पूरा एफएनओ सेगमेंट में से आपके पास शॉर्ट पुट वाला सिनेरियोज है, शॉर्ट कवरिंग ऑन कॉल वाला सिनेरियोज है. तो जैसे अभी टाटा मोटर्स है, मल्टीपल टाइम्स वो आया है, राइट. टाइटन भी है, वी विल एनालाइज टाइटन एज वेल, ओके, विच हैज बीन अपीयरिंग ऑन शॉर्ट पुट एज वेल. एंड यहाँ पे अगर हम देखें शॉर्ट कवरिंग कॉल मारुति आई एक्स आई इग्नोर बिकॉज इट हैज बीन रिसेंट एडिशन. भारत फोर्ज अगेन आई डोंट थिंक इट इज दैट हाईली लिक्विड इन ऑप्शंस. सो हम आइडिया ये है कि थोड़ा सेंस लगा के जो लिक्विड ऑप्शंस है, जो लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन्हीं को पकड़ेंगे. ठीक है, तो पूरा एफएनओ सेगमेंट में से पहला आपको बायस मिला कि ना ऑटो सेक्टर इज इन अ गुड मूव, मार्केट सेंटिमेंट इज पॉजिटिव, मार्केट्स ब्रेथ इज पॉजिटिव. दूसरा ऑटो सेक्टर में से आपको टाटा मोटर्स मिला एंड मारुति मिला, वेयर देयर इज अ पॉजिटिव मोमेंटम गोइंग अराउंड. अभी वो पॉजिटिव मोमेंटम है या नहीं वो कैसे पता लगा हमें? शॉर्ट कवरिंग हैपनिंग ऑन कॉल एंड शॉर्ट हैपनिंग ऑन पुट. दैट टेल्स अस सपोर्ट ये सारे इंस्ट्रूमेंट का स्ट्रांग हो रहा है एंड रेजिस्टेंस ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स का वीक हो रहा है. तो अभी आइडिया ये है कि आपको इंस्टेंट वो नहीं मिलेगा. लाइक इट इज नॉट टेलिंग यू टू डायरेक्टली गो अहेड एंड सेल अ पुट ऑफ टाटा मोटर 430 का पुट. ऑब्वियसली यू नीड टू गो अहेड एंड एनालाइज इट फर्दर. तो कैसे करेंगे हम आगे देखेंगे. बट या दिस इज द होल आइडिया कि एटलीस्ट आउट ऑफ 150 एफएनओस you will be able to shortlist 3 to 4 कैंडिडेट्स जहां पे पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है बाजार में. जैसे मारुति है, लॉन्ग भी हो रहा है कॉल पे. बट व्हाई आई प्रिफर शॉर्ट कवरिंग ऑन कॉल इज बिकॉज यहाँ पे क्लियर आइडिया देता है कि ओके द रेजिस्टेंस इज गेटिंग वीकर. लॉन्ग में क्या हो रहा है? ओवाई गोज अप, प्राइस गोज अप. तो ओवाई जब ऊपर जाता है ना, दैट अगेन गिव्स मी अ सेंस ऑफ वरीनेस कि ओके ये जो ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है, that tells us basically कि resistance बढ़ रहा है, right? So I generally try to go ahead with short covering on call and shorts happening on put. That is again my preference. You can also go ahead with long call. That is still fine, but I generally try to do it that way because it is much more easier to understand as well. आप ये चीज से भी कर सकते हैं. That is still fine. Okay, उससे दिक्कत नहीं है. But I generally try to go ahead and find out कौन से stocks पे short covering आ रहा है call पे and कौन से stocks पे short आ रहा है put पे. Okay. फिर now let's say I have some stocks, so let's say notepad, okay, so let's say Tata Motors, okay, then दूसरा था मारुति, okay, तीसरा था टाइटन, okay, एटलीस्ट इन सारे स्टॉक्स में कुछ तो मुझे पॉजिटिव मिला. ओके, इंडिगो नहीं पिक करेंगे बिकॉज इंडिगो में यहाँ पे शॉर्ट कॉल भी हो रहा है. ओके, सो आई विल नॉट पिक इंडिगो. तो एटलीस्ट पूरे एफएनओ सेगमेंट में से 3 चीज हमें मिला जहां पे एक मोमेंटम है. देन नेगेटिव साइड पे भी उल्टा हम शॉर्ट कवरिंग ऑन पुट देखेंगे, ऐसा इंस्ट्रूमेंट ढूंढेंगे जिसका सपोर्ट टूट रहा हो एंड शॉर्ट कॉल देखेंगे उसके सामने कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में एक कॉल पे ज्यादा एडिशन हुआ है, कहाँ पे हैवी एडिशन हुआ है कॉल पे. सो इससे क्या होगा, यू विल फाइंड आउट सम इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे एक मोमेंटम. ओके, एंड या दैट्स हाउ यू यूज सिनॉप्सिस ऑप्शंस ओआई. सो आई डोंट नो व्हाट आई डिड, प्रेस F11. ओके, ठीक है. So are we clear up till now कि आपको करना क्या है, कब करना है? I'll tell you that as well कि कब करना है ये जनरली आपको, कि कौन से टाइम फ्रेम में करना है, that also I'll tell you. तो यहां तक कुछ भी डाउट है? कौन सा स्टॉक लिक्विड है? सो आपको वो जब आप ये करेंगे ना, तो देयर इज अ टूल व्हिच इज लिक्विडिटी फाइंडर जो आपको बता देगा कि वेदर द स्टॉक इज लिक्विड और नॉट. सो यहाँ तक कुछ भी डाउट है आप लोगों को, लाइक एनी डाउट अप टिल नाउ, बिकॉज दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट कि आपको ढूंढना कैसे है. If it is clear, I would appreciate if everybody posts us a thumbs up button so that मुझे पता लगेगा that whatever we are doing is clear up till now. हाँ, synopsis update होता रहेगा. Every 5 minutes it will keep on updating. I'll give you today's example as well कि what we observed.
ठीक है, तो आपको ढूंढना इतना है कि कौन सा एटीएम कॉल पे, ओके, देयर इज एससी, ओके, ऑन कॉल, एंड फिर आप ऐसा भी ढूंढ सकते हैं कि शॉर्ट पुट हैपनिंग, ओके, एटीएम कॉल पे, ओके, एसपी, नहीं 5 मिनट का स्नैपशॉट डेटा है वो। सो आई होप द थिंग इज क्लियर। ओके, ओके, सो फेयर इनफ। सो अभी ना, लाइक ये चीज देख के, तो जैसे मैंने कहा ना कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस एक मोस्ट सेंसिटिव स्ट्राइक प्राइस हो जाता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट के लिए, कि वो स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव प्राइस है, कि वहां पे देर इज, इफ देर इज समथिंग एक्टिविटी हैपनिंग ऑन दैट स्ट्राइक, दैट विल इंस्टेंटली बी रिफ्लेक्टेड। ठीक है, कि इंस्टेंटली उसका एक चेंजेस हमें देखने मिल सकता है। सो ना अभी इतना सारा में से ना एट द मनी ढूंढना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, लेट्स से मारुति, इफ यू आर हैविंग कन्विक्शन गो अहेड विद इट, मारुति एंड ओपन इंटरेस्ट, सिंपल। तो ये चीज आपको खुद बता देगा वेदर द स्ट्राइक की कौन सा स्ट्राइक प्राइस में शॉर्ट कवरिंग आ रहा है। ओके, व्हाट इज द करंट सिनेरियो, ग्रीन कलर इज एडिशन, हॉलो जहां पे क्रिएट हुआ है दैट शोज अस अनवाइंडिंग। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे मारुति में, ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि मारुति में हमें कैसे मिला था वो। ओके, सो मारुति में अगर हम देखें 7700 के कॉल पे एडिशन हुआ है, पुट पे भी ऐड हो रहा है। ओके, देन अगेन दिस इज नॉट समथिंग व्हिच वन कैन लुक आउट फॉर, बट स्टिल यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना ये स्ट्राइक, देन अगेन till 18,000 a lot of unwinding is going around, so still Maruti becomes like your candidate. ठीक है, let's say Tata Motors, okay, Tata Motors, okay, so at the money, तो अभी टाटा मोटर्स ना अनवाइंडिंग ऐसा नहीं हुआ है कि पूरा बाजार बंद होते साथ पूरा 30% अभी अनवाइंड हुआ, जो भी स्ट्राइक प्राइस हमने देखा था ऐसा नहीं हुआ है कि ये मार्केट बंद होने के जस्ट 15 मिनट पहले ही अनवाइंड हुआ है। इट वो द एक्टिविटी टेक्स प्लेस जब से बाजार खुला हो तब से। तो यहाँ पे हम देखेंगे काफी ज्यादा अनवाइंडिंग हो रहा है कॉल पे, एक शॉर्ट कवरिंग आ रहा है बहुत तेजी से, ओके, एंड टाटा मोटर्स। ठीक है, देन अगेन यहाँ पे जब प्राइस होगा तो आपका आइडिया क्या है, व्हाट इज द काइंड ऑफ थिंग विच यू आर लुकिंग आउट फॉर। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा सिनेरियो खोज रहे हैं। ओके, सो लेट्स से टाइटन, ये रहा हमारा एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। ओके, पुट आई एम नॉट ट्राइंग अज्यूम दैट वी हैव ड्रॉन अ पुट, कि सिर्फ कॉल ही ड्रॉ कर रहे हैं हम। ओके, सो लेट्स से कि दिस इज माय एटीएम, एटीएम सी, ओके, प्राइस कुछ इस तरीके से मूव हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पे हम देखते हैं सडनली कि काफी जोरदार अनवाइंडिंग हमें देखने मिला। ओके, और शॉर्ट कवरिंग हमें देखने मिला। सो दैट टेल्स अस द कॉल राइटर्स आर वरीड एंड देयर इज अ चांस ऑफ एन स्पाइक टू हैपन। ओके, ये सिंपल है हमारा मूव। अभी इसके साथ साथ हम क्या खोज सकते हैं, इसके साथ साथ हम ये भी खोज सकते हैं कि कौन से ऐसे पुट स्ट्राइक्स है। सो लेट्स से दिस इज माय पुट स्ट्राइक। ओके, लेट मी जस्ट कलर इट। हाँ, सो लेट्स से दिस इज माय पुट स्ट्राइक। ओके, ये वाला हमारा पुट स्ट्राइक है। सो यहाँ पे हमें करना क्या है, सो लेट्स से दिस इज माय पुट स्ट्राइक। तो यहाँ पे हमें ये देखना है दैट पुट का जो ओवाई है दैट शुड हैव गॉन अप, जो सपोर्ट है दैट शुड गो अप, द रेजिस्टेंस शुड बी वीकेंड। तो हम ये खोज रहे हैं। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स में ना ये पॉइंट पे 400 के पॉइंट पे दैट वाज सिमिलर मूव व्हिच वाज बीन ऑब्जर्व। ठीक है, टाटा मोटर्स। सो अगेन टाटा मोटर्स वुड हैव बीन आवर कैंडिडेट। आई विल टेल यू कि आपको ये बाजार में कौन से टाइम पे करना है, आई विल टेल यू दैट आल्सो। लेट्स से टाइटन, टाइटन में अगर हम देखेंगे ना तो परफेक्ट सिनेरियो क्रिएट हुआ है। यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आ रहा है 2400 पे कॉल पे शॉर्ट कवरिंग, देन अगेन 2380 के कॉल पे शॉर्ट कवरिंग, एडिशंस हो रहा है पुट पे, दैट टेल्स अस कि देयर इज समथिंग पॉजिटिव व्हिच दे आर एक्सपेक्टिंग। पुट बेचा जा रहा है, the put writings is happening and the call returns are getting covered, so again titan will become like our candidate। तो इस तरीके से using just simple I would say options understandings हम एक स्टॉक खोज सकते हैं। ओके,
कब खोजना है? अभी द क्वेश्चन इज कि व्हेन शुड वी गो एंड यूज सिनॉप्सिस? बाजार बंद हो जाए टाइम पे? नहीं। 12 बजे? नहीं। ट्राई टू यूज इट इन द ओपनिंग आवर, 9:30 9:35 ऑनवर्ड से इसको यूज करना स्टार्ट कीजिए। बायस ढूंढा, बायस के बाद हमने ऑप्शंस में कौन सा स्ट्राइक प्राइस में मोमेंटम है वो ढूंढा। नाउ अभी यहाँ पे देखिए कैसा है ना कि एट द मनी खोज पाना डिफिकल्ट है, कि एग्जैक्टली एट द मनी मिले ना मिले वी डोंट नो, लेकिन एटलीस्ट लेट्स से मारुति का ये स्ट्राइक प्राइस देख के वी नो दैट देयर इज समथिंग गोइंग अराउंड इन मारुति, यू विल एनालाइज इट। द ओपन इंटरेस्ट डेटा आपको एक स्टेप करीब लेके चले जाएगा। ओके, so let's say back again to synopsis options over. Okay. So let's say this one, Tata Motors. Okay, so हाँ तो शॉर्ट पुट का लेते हैं एक एग्जांपल। लेट्स से टाटा मोटर्स 430 का पुट। ओके, सो 430 का पुट ऑप्शन इज अगेन वे फार आउट ऑफ द मनी। अभी कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं बचा, जो मार्केट में ओपन आवर पे करते हैं, वी वुड हैव स्टिल फाउंड आउट सम अपॉर्चुनिटी एंड आई विल टेल यू दैट एज वेल कि कहाँ पे आपको मिलना है। सो आई जस्ट रिपीट व्हाट वी लर्न। पहला हमने सिनॉप्सिस में बायस ढूंढना सीखा। देन लुकिंग एट इंडेक्स कंट्रीब्यूटर, प्रोबेबली आप वो स्टॉक पिक कर सकते हैं जो सेक्टरल जो है, जिनका सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन अच्छा है निफ्टी के टुवर्ड्स। ओके, पहला। दूसरा, यू कैन यूज फ्यूचर्स ऑप्शंस, फ्यूचर ओआई ऑफ सिनॉप्सिस, जहां पे आपको मार्केट का बायस आएगा। ओके, दैट वाज द थिंग। तीसरा, आपको अगर एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए राइट, कि कहाँ पे मार्केट इज गिविंग एस अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं है कि वेदांता में हमें ट्रेड लेना है इसलिए हम जाके डेटा मैच कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग गोइंग टू मैच द डेटा। जहां पे बाजार बोल रहा है कि वहां पे एक अपॉर्चुनिटी जनरेट हुआ है, वी विल एनालाइज दैट। ठीक है, तो अभी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगा? सिनॉप्सिस ऑप्शंस हुआ है, मारुति, टाटा पावर, सारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जहां कहीं पे भी सबसे ज्यादा हैवी एक्टिविटी है वो पता लगेगा हमें। अगर बाजार पॉजिटिव साइड पे, हमें क्या ढूंढना है? शॉर्ट कवरिंग कहाँ हो रहा है कॉल पे, एंड शॉर्ट कहाँ हो रहा है पुट पे। नेगेटिव अप्रोच में है बाजार, नेगेटिव मूव पे है, तो हम ये ढूंढेंगे कि शॉर्ट कवरिंग कहाँ हो रहा है पुट पे, एंड शॉर्ट कहाँ हो रहा है कॉल पे। लॉन्ग कॉल लॉन्ग पुट आप कर सकते हैं, बट आई वुड स्टिल से कि यू कैन, इफ यू फाइंड इट आउट इजी शॉर्ट कवरिंग ऑन कॉल, यू कैन गो ahead with that। आपको लॉन्ग कॉल इजी लगता है, यू कैन गो ahead with that। Is it telling you to long a call over here, buy call option over here? No. Okay. Is it telling you to sell a put option over here? No. It is just telling you कि ये put का प्राइस नीचे गया है एंड OI ऊपर गया है सबसे ज्यादा पूरे एफएनओ सेगमेंट। तो वो तरीके से तो ये बताता है कि ये सारे स्ट्राइक प्राइसेस में पुट ऑप्शन जो है दैट हैज बीन गिविंग इट अ सपोर्ट, द पुट राइटर्स आर गिविंग इट अ सपोर्ट। एंड यहाँ पे जो कॉल राइटर थे वो डरने के वजह से देयर इज अ लाइकली चांस ऑफ अपसाइड मूव व्हिच वी आर एक्सपेक्टिंग। ओके, सो नाउ एज आई सेड कि एट द मनी पे एग्जैक्ट मिलना डिफिकल्ट है। लेट्स से कि हमें ऐसा लगता है कि ओके ये भी ठीक है, ये अगर हमें सिनॉप्सिस देखने मिला 7,600 का, हम फिर भी जाके उसको एनालाइज करेंगे, क्योंकि हो सकता है ना कि यहाँ पे भी होता हो लेकिन वो कम अनवाइंडिंग होता हो, राइट। सो वी विल ओपन द इंस्ट्रूमेंट, 4-5 इंस्ट्रूमेंट हम शॉर्टलिस्ट करेंगे एंड वी विल कम टू ओपन इंटरेस्ट एंड वी विल ट्राई टू स्कैन एग्जैक्टली विच अपॉर्चुनिटी लुक्स द गुड। ओके, देन लास्ट थिंग इज लेट्स से मारुति। सो सारे लोग आई वुड से अपार्ट फ्रॉम मी, ओके, आई कीप माई सेल्फ आउट ऑफ दैट। मुझे छोड़ के लाइक आई वुड बी द लास्ट वन हु इज नोइंग टेक्निकल एनालिसिस वेरी, आई वुड से बहुत अच्छे से तो नहीं आता है मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट आप लोगों को सारों को यू वुड बी नोइंग टेक्निकल एनालिसिस एंड आपको चार्ट्स प्लॉट करना है। ठीक है, आपको फिर भी देखना है कि मारुति जो है उसका हिस्टोरिकल स्ट्रेंथ कैसा है। हियर वी गो, वी हैव द चार्ट्स एज वेल। आप जाके देख सकते हैं कि मारुति एग्जैक्टली यू कैन प्लॉट द चार्ट्स 5 मिनट्स तक का मिनिमम। Go to indicators, let's say RSI plot करना है, you plot the RSI, let's say RSI, okay, so let's say strength, okay, so let me just change the color, let's say orange, okay, let's say थोड़ा broad कर देते हैं इसको, okay. Let's say 60, okay, apply, okay, तो यहाँ पे हम देखेंगे मारुति का RSI was also कितना था RSI, okay, so it was around 69, okay, so that again is a good buying zone for us. So
basically you can also plot your technical indicators. You can see exactly कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट खोजा है is that supporting your technical indicator as well, and then you can try to decide about your opportunity. So apart from that, let's say अगर आपको open interest, आप delete कर सकते हैं open interest को, that is still fine. Okay, so QOY, इस ओपन इंटरेस्ट में आपको ये देखने मिलेगा दैट द प्राइसेस आर गोइंग अप अलोंग विद ओवाई गोइंग अप, दैट इज अ लॉन्ग बिल्टअप. ठीक है, कि प्राइस में एक लॉन्ग बिल्टअप आया है, कल एक लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव आया था जहाँ पे प्राइस नीचे गया है, ओपन इंटरेस्ट नीचे गया. सो इस तरीके से बेसिकली फ्रॉम फाइंडिंग आउट अ बायस टू finding out an opportunity and further kind of analyzing it up, just by using free tools you can do it all together. Then architect, let's say कि आपने मारुति का कॉल ऑप्शन खरीद लिया. Okay, let's say if you bought Maruti's call option. Yeah, but I don't use charts, I use the future OIH instead. That gives me a clearer picture. But आप लोग कर सकते हैं, that is still fine. So you can build your strategy. आप analyze कर सकते हैं payoff. Like on what level, what is the PNL which you would make in this strategy. Let's say आज के end of the day तक मारुति, let's say कि if it goes until the level of 7,696, okay, or let's say up till this level. So you can see the tabular view, so it will give you a clearer picture. So 7,696 to 7,700 becomes like a break even. इसके ऊपर जब जब मारुति जाएगा you will make a profit. Let's say कि हमने ये 2-3 दिन ऑप्शन होल्ड करके देखना है, so we can even go ahead and do that. Let's say 4 दिन 10 दिन होल्ड करके देखना है, you can do that. 40% से IV क्रैश हो गया, how the PNL is going to get affected, you can do that. So यहाँ पे if I reset everything, okay, so basically आप यहाँ पे break evens everything, like everything related to your option strategy, you can go ahead and back test it. I'm not sorry, not back test, analyze it. So if you have liked the webinar, so I'll show you कि आज what I observed, and कि उससे आपको एक idea आ जाएगा कि exactly what is your actionable. But before that, if you are liking the webinar which we are doing, and I would appreciate, we are 45 us of watching right now. If everybody hits the thumbs up button, subscribe button at the same time, do hit the bell icon. तो जब कभी भी हम वीडियो करते हैं, you'll receive a notification. And you can also hit the like button. अगर आप लोगों को webinar, if you are finding it good, you can also hit the like button of the webinar so that it gets ranked up even higher. So any doubts or queries up till now, you can all post it out in the chat box. So liquidity के लिए tools में there is a tool which is liquidity finder. ठीक है, so that will tell you कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट लिक्विड है या नहीं है. जैसे अल्केम यहाँ पे हम देखेंगे, अल्केम में फिर एलेम्बिक फार्मा में भी लिक्विडिटी नहीं है, so it has given the least stars. जिसमें स्टार्स ज्यादा है, that tells us कि that instrument is having a decent amount of liquidity. Okay, तो आज का अगर मैं आपको बताने जाऊँ, so any doubt you can post it out in the chat box and then I'll take a summary. So let's say what we observed is, okay, so let's say this one. ठीक है, so this was posted at 9:33. okay, 9:30 के आसपास. ऑप्शंस हुआ है, अगर हम देखेंगे फोन का मोबाइल वाला स्क्रीनशॉट है, ऑप्शंस हुआ है, क्या क्या है, कोटक बैंक है, मारुति 7600 की कॉल, ओके, टाटा मोटर्स 385 कॉल ऑप्शन, आईएक्स मारुति 7500, पावर ग्रिड 190, कोटक बैंक 1960, आईएक्स 700 कि ये सारे कॉल्स पे एक शॉर्ट कवरिंग आ रहा था, बराबर. दैट टेल्स मी कि देयर इज समथिंग पॉजिटिव हैपनिंग इन मारुति. I'll also tell you कि टाटा मोटर्स क्यों पिक नहीं किया. Okay, and so let's say मारुति 7500 7600 के कॉल पे एक शॉर्ट कवरिंग. ठीक है,
that told me that there is something about to happen in Maruti. So what I did, मैंने I opened, let's say, synopsis options हुआ है, future हुआ है, मैं गया मैं, okay. I saw that the market's breadth is positive, it is looking on the positive side. Then फिर उसके बाद I quickly went to index contributor. I saw कि which stocks and sectors are outperforming. So it was auto and private bank. Okay. Then again I went to synopsis. I went to options हुआ है. मैंने ये देखा कि short covering का आ रहा है कॉल पे, तो it was Maruti. Okay. Then Maruti का I analyzed the open interest levels, but at that time ना यहाँ पे एक short covering आ रहा था. So if I show you the chart, okay. So if you see this, so I have selected something. Okay, so I have selected this. Okay. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग था. तो इफ यू, सो लेट्स सी, सो या, हाँ, तो यहाँ पे हम देखेंगे देयर वाज अ शॉर्ट कवरिंग. ओके, सो आई एक्सपेक्टेड दैट द कॉल्स आर गेटिंग अनवाइंडेड हेवीली, एंड यहाँ पे द एडिशन वाज हैपनिंग, एंड द प्राइस वाज 7630 एट दैट पॉइंट. ओके, 7629 at 9:30. Then I plotted the charts. I did some technical analysis randomly. Okay, as everybody does it. So even I did it. So यहाँ पे अगर हम देखेंगे, so this was the point. Let's say trend line 9:35. Let's say, okay, चल 9:35 से, okay, so it made a high up till 744, but still I found out that there might not be enough momentum left. So we tried to kind of give a message over here itself. So if you see, we sent a message over here that Maruti is up by around 1%. And option, इतना बड़ा मूव में ऑप्शन would have moved a lot. बट स्टिल उसके बाद भी मारुति ऊपर गया है. सो इफ आई एनालाइज, तो अगर हम देखेंगे, इवन मारुति वेंट अप हायर इवन पोस्ट दैट. करेक्ट. हाँ, अभी वो एग्जैक्ट यहाँ पे पीक पे तो आई मतलब वहां पे तो एग्जैक्टली हमें काटने नहीं मिलेगा, बट स्टिल अगर आपको इतना इतना भी मूव मिल जाता है, दैट इज स्टिल फाइन यूजिंग, आई वुड से, जस्ट बाय एनालाइजिंग द नॉर्मल थिंग्स, राइट. अभी टाटा मोटर्स क्यों नहीं लिया? ओके, सो आई डोंट नो व्हाई आई डिडंट पिक अप. बेसिकली मुझे लगा कि इंस्ट्रूमेंट काफी चल चुका है, देयर वुड बी अ डिप हैपनिंग, एंड वो हाईएस्ट कॉल पे भी ट्रेड हो रहा था. सो आई इग्नोर टाटा मोटर्स, एंड सरप्राइजिंगली वेंट अप लाइक कुछ ऊपर था 9% से, राइट. सो इट विल हैपन, मतलब ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये ही करेंगे तो इट विल गिव अस द बेस्ट रिजल्ट, बट दैट विल हैपन विद एवरीबडी, राइट. कि आप मतलब जो चलने वाला स्टॉक है आपने उसको इग्नोर करके यू पिक्ड अप समथिंग एल्स, बट दैट इज स्टिल फाइन. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल kind of make you a data driven trader in a long term. Okay, so any doubts up till now, or else I'll try to sum it up very quickly. हाँ, तो ये फ्री टूल को देख के ही अगर हम देखेंगे ना, ये हमने जो लिया है, सो यू मतलब दिस इज नॉट अ ट्रेड, दिस इज जस्ट वी हैड पोस्टेड इट. ओके, दिस इज नॉट अ ट्रेड. सो इफ आई शो यू, तो अगर हम देखेंगे ये वाला चीज 9:33 को, वी ऑब्जर्व दैट देयर इज अ शॉर्ट कवरिंग हैपनिंग ऑन कॉल. करेक्ट. अभी वो देखा कहाँ से? फ्री टूल में से. यहाँ पे हम देखेंगे मारुति 7500 एंड 7600. ओके, फिर हमने क्या किया, व्हाट वी डिड, वी एनालाइज्ड द ओपन इंटरेस्ट पैनल. ओके, कि ओपन इंटरेस्ट कैसे चेंज हो रहा है. ओके, so there was directly addition on 7700. Okay, now we checked the charts and it looked good, and yeah, that is how it is exactly. ठीक है, but उसके पहले we had a bias कि index contributor में जाके we found out कि which stocks were which sectors were kind of on a boom and which sectors kind of were dragging. Okay, so synopsis options over. Okay, तो यहाँ पे, so without doing, the tool itself will tell you, so आपको सिर्फ analyze करना है हल्का सा, that itself will give you an option. ये ट्रेड नहीं है, we just sent a message when we observed at 9:33 प्राइस कुछ था एटलीस्ट अराउंड 7630. ओके, सो लेट्स से मारुति.
So Maruti उसके बाद it made a high of at least 17,760. But exactly जैसे मैंने कहा ना, exactly आप high पे जाके नहीं square off कर पाएंगे. So you can try to take an exit even before that. Nobody can exactly go ahead and predict the peak. So उसके लिए if there is something like that, you can also let me know in the comment section कि exactly कैसे peak पकड़ पाए, कि जो instrument एकदम peak पे जाके square off करेंगे हम buy किया हुआ trade का. So, but yeah, we did it like I thought that the momentum is getting lost. So somewhere around at this point itself, we tried to take an exit. Okay, so यहाँ से you'll still see that the move is still here. Okay, up till 17,710, somewhere around that level. So yeah, I would say so I would say that was something which was from my side. So that is how using concepts free tools itself, like we provide the widest range of option analytical tools, wherein all you need to do is just analyze the data. Like nobody, like we won't be giving you any sorts of direct trades or something like that in our application. जहाँ पे सीधा target, सीधा stop loss. It's not an kind of an advisory. And today we understood about how using concepts, simple. So that is something which can be done by anybody amongst us. There is, no such complex